boy deyishingiz yoqadi oqsoqol. Hammaga ham yoqadi Sodiqboy, boy bo'lish. Pari iltimos qildi. Seni yordamiga muhtoj emasman. Kuyovingiz yaxshi. Ko'zlarini ko'rmayotganini hisobga olmaganda yaxshi. 3 oyda uzog'i bilan yaxshi bo'lib qolar ekan. Aka, tezroq narsalarimizni yig'ishtirishimiz kerak. Meni majburlashdi o'qishga. Meni majburlashdi. Kozimga rozilik berdik. Boshqa bezovta qilmang. Nimaga xolingizni ovora qilib yuribsiz? Nima endi? Shunaqa qilib yuraveramizmi? Boya qaynonam kelib, rosa janjal qildilar. O'g'limni qamating deb uyni boshiga ko'tardi. Mabodo bu ishga siz aloqangiz yo'qmi? Men qildim. Ishxonamga pichoq ko'tarib ketdi. Bir nimalar deb pichoq o'qtaldi. Nodir akammi? Sobiq turmush o'rtog'ingiz. Keyin nima qildilar? Bunaqa odatlari yo'q edi. Ofitsiantlar ushlab qolishdi. Keyin ichki ishlarga olib ketishdi. O'sha yerda ham meni qamanglar deb baqirdi. Xodim keyin 15 sutkaga tiqib qo'ydi. Men kerak emas, ketaversan desam ham qo'ymadi. Menimcha uyga borgisi yo'q. Balki xotinimda ko'nglim yo'q deyotgandilar. Onalari ham jonidan to'ydirgan bo'lsa, qamoqxona tinch degandirda. Bor gap shu. Yaxshi bo'lmabdi-da. Kim yomon? Yana men yomonman. Xotini qamatgan bo'ladi. To'g'rimi? Odamlarga e'tibor bermang. Gap so'zlarga qarab yashasangiz, yashashni keragi yo'q. To'g'ri. Bari. Kozimjonni xolasi ketdi. 3 kundan keyin yana kelaman dedi. Non sindirib ketaman dedi. Oyi. Non sindirishga nima bor? Nima deyapsiz? Qizim, bunaqa uchrashib yurishlaringiz yaxshi emas. Kozim yaxshigina yigit. Seni qadrlaydi. Bolalaringga yaxshi ota bo'ladi. Shunga tegib qo'ya qol. Sizga og'irligimiz tushyaptimi? Yo'q. Axir necha oydan beri sarson bo'lib yuribdi-ku. Yo'q demagin, jon qizim. Hammasini bilaman. Eringdan ko'nglingni uzolmay yurganingni ham bilaman. Lekin uni oldiga boradigan yo'llar yo'q-ku. Hamma rishtalar uzilib bo'ldi-ku. Sal mundoq aql bilan yashagin qizim, ko'ngil bilan emas bolam. Oyi. Erimni yaxshi ko'raman. Ular bilan ne kunlarni ko'rmaganmiz. Boshimizdan ne kunlar o'tmadi. Qizim, to'g'ri tushungin. Baribir onasi qo'ymaydi, yashattirmaydi seni. Sen kasalsan. Qo'ygin. Baloga qolmaylik, jon bolam. O'zi zo'rg'a qutuldik. Ko'rding-ku. Qaynonang kelib janjalni kattasini qilib ketdi. Bilmayman, oyi. O'ylab ko'rishim kerak. Menga vaqt bering. Shuncha vaqt o'ylading. Endi qaror qabul qilgin.
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है एक आदमी एक लड़की के साथ बातें कर रहा होता है और वहाँ पर वो एक दूसरे के सामने आपस में देख रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। ऐसे में नाज़रीन इस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कई तरफ गुस्से से देखने लग पड़ता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वो आदमी जो होता है वो एकदम से उठ जाता है और वहाँ पर जो लड़की होती है उसको पता होता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे में वहाँ से वो लड़की हंसने लग पड़ती है और हमें दिखाया जाता है कि आदमी फिर बैठ जाता है और अपने हाथ को हिलाकर कहता है कि अगर तुमने आज के बाद मुझे ऐसी कोई बात की तो मैं तुम्हें मार दूँगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो आदमी वहाँ पर ही बैठा रहता है और जो लड़की होती है उसको भी गुस्सा आ जाता है और कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ बदतमीज़ी की तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। ऐसे में वहाँ पर जो आदमी होता है वो वहीं पर बैठा रहता है और वो भी एकदम से डर जाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं लड़की आगे से हंसने लग पड़ती है। हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि जो आदमी होता है उसके पास भी एक दो और लड़के आ जाते हैं, वो भी आपस में बातें करने लग पड़ते हैं। ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आने वाले एपिसोड में ये देखेंगे जो लड़की होगी वो उसके ऊपर केस कर देगी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि केस कौन जीतता है। फिर जो आदमी होता है नाजरीन वो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो अपने भाई को बता देता है सारी बात। उसके बाद उसका भाई जो होता है वो भी इसकी बात के ऊपर एक्शन करने लग पड़ता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो सारे खड़े हो जाते हैं और आपस में बातें करने लग पड़ते हैं और हमें आने वाले एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि जो आदमी होता है वो वहाँ से चले जाता है और अपने भाई के साथ मशवरा करने लग पड़ता है। फिर हमें दिखाया जाता है उसकी वालदा आ जाती है और वालदा उसकी बोलती है कि अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसे में वो उन दोनों की वालदा वहाँ पर आपस में बैठी होती हैं और एक दूसरे के साथ बात कर रही होती हैं और वो आपस में मशवरा कर रही होती हैं कि अब हम क्या करेंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो उसकी वालदा होती है नाज़रीन इकराम वो भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि मेरे बेटे को तुमने कुछ भी नहीं कहना। ऐसे में इस एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा हमें सीन दिखाए जाते हैं और आगे से एक लड़की आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ऐसे में उसका वालिद भी वहाँ पर आ जाता है और उसके वालिद को ये बात का पता चलता है तो वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके साथ नाराज़ हो जाता है। उसके बाद हम ये देखेंगे नाज़रीन कराम जो उसकी लड़की होगी वो उसकी दोस्त के पास चली जाती है और उसको भी ये सारी बातें बता देती है और उसकी जो दोस्त होती है वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और परेशान हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और वो अपनी बहन के साथ आपस में बातें करने लग पड़ती हैं और हमें ये दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो अपने भाई के पास जाकर बातें कर रही होती है। ऐसे में इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है एक आदमी एक लड़की के साथ बातें कर रहा होता है और वहाँ पर वो एक दूसरे के सामने आपस में देख रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। ऐसे में नाज़रीन इस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कई तरफ गुस्से से देखने लग पड़ता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वो आदमी जो होता है वो एकदम से उठ जाता है और वहाँ पर जो लड़की होती है उसको पता होता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे में वहाँ से वो लड़की हंसने लग पड़ती है और हमें दिखाया जाता है कि आदमी फिर बैठ जाता है और अपने हाथ को हिलाकर कहता है कि अगर तुमने आज के बाद मुझे ऐसी कोई बात की तो मैं तुम्हें मार दूँगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो आदमी वहाँ पर ही बैठा रहता है और जो लड़की होती है उसको भी गुस्सा आ जाता है और कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ बदतमीज़ी की तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। ऐसे में वहाँ पर जो आदमी होता है वो वहीं पर बैठा रहता है और वो भी एकदम से डर जाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं लड़की आगे से हंसने लग पड़ती है। हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि जो आदमी होता है उसके पास भी एक दो और लड़के आ जाते हैं, वो भी आपस में बातें करने लग पड़ते हैं। ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आने वाले एपिसोड में ये देखेंगे जो लड़की होगी वो उसके ऊपर केस कर देगी। उसके बाद
बाद हम ये देखते हैं कि केस कौन जीतता है। फिर जो आदमी होता है नाजरीन वो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो अपने भाई को बता देता है सारी बात। उसके बाद उसका भाई जो होता है वो भी इसकी बात के ऊपर एक्शन करने लग पड़ता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो सारे खड़े हो जाते हैं और आपस में बातें करने लग पड़ते हैं। और हमें आने वाले एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि जो आदमी होता है वो वहाँ से चले जाता है और अपने भाई के साथ मशवरा करने लग पड़ता है। फिर हमें दिखाया जाता है उसकी वालदा आ जाती है और वालदा उसकी बोलती है कि अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसे में वो उन दोनों की वालदा वहाँ पर आपस में बैठी होती हैं और एक दूसरे के साथ बात कर रही होती हैं और वो आपस में मशवरा कर रही होती हैं कि अब हम क्या करेंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो उसकी वालदा होती है नाज़रीन इकराम वो भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि मेरे बेटे को तुमने कुछ भी नहीं कहना। ऐसे में इस एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा हमें सीन दिखाए जाते हैं और आगे से एक लड़की आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ऐसे में उसका वालिद भी वहाँ पर आ जाता है और उसके वालिद को ये बात का पता चलता है तो वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके साथ नाराज़ हो जाता है। उसके बाद हम ये देखेंगे नाज़रीन कराम जो उसकी लड़की होगी वो उसकी दोस्त के पास चली जाती है और उसको भी ये सारी बातें बता देती है और उसकी जो दोस्त होती है वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और परेशान हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और वो अपनी बहन के साथ आपस में बातें करने लग पड़ती हैं और हमें ये दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो अपने भाई के पास जाकर बातें कर रही होती है। ऐसे में इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है एक आदमी एक लड़की के साथ बातें कर रहा होता है और वहाँ पर वो एक दूसरे के सामने आपस में देख रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। ऐसे में नाज़रीन इस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कई तरफ गुस्से से देखने लग पड़ता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वो आदमी जो होता है वो एकदम से उठ जाता है और वहाँ पर जो लड़की होती है उसको पता होता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे में वहाँ से वो लड़की हंसने लग पड़ती है और हमें दिखाया जाता है कि आदमी फिर बैठ जाता है और अपने हाथ को हिलाकर कहता है कि अगर तुमने आज के बाद मुझे ऐसी कोई बात की तो मैं तुम्हें मार दूँगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो आदमी वहाँ पर ही बैठा रहता है और जो लड़की होती है उसको भी गुस्सा आ जाता है और कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ बदतमीज़ी की तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। ऐसे में वहाँ पर जो आदमी होता है वो वहीं पर बैठा रहता है और वो भी एकदम से डर जाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं लड़की आगे से हंसने लग पड़ती है। हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि जो आदमी होता है उसके पास भी एक दो और लड़के आ जाते हैं, वो भी आपस में बातें करने लग पड़ते हैं। ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आने वाले एपिसोड में ये देखेंगे जो लड़की होगी वो उसके ऊपर केस कर देगी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि केस कौन जीतता है। फिर जो आदमी होता है नाजरीन वो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो अपने भाई को बता देता है सारी बात। उसके बाद उसका भाई जो होता है वो भी इसकी बात के ऊपर एक्शन करने लग पड़ता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो सारे खड़े हो जाते हैं और आपस में बातें करने लग पड़ते हैं और हमें आने वाले एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि जो आदमी होता है वो वहाँ से चले जाता है और अपने भाई के साथ मशवरा करने लग पड़ता है। फिर हमें दिखाया जाता है उसकी वालदा आ जाती है और वालदा उसकी बोलती है कि अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसे में वो उन दोनों की वालदा वहाँ पर आपस में बैठी होती हैं और एक दूसरे के साथ बात कर रही होती हैं और वो आपस में मशवरा कर रही होती हैं कि अब हम क्या करेंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो उसकी वालदा होती है नाज़रीन इकराम वो भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि मेरे बेटे को तुमने कुछ भी नहीं कहना। ऐसे में इस एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा हमें सीन दिखाए जाते हैं और आगे से एक लड़की आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ऐसे में उसका वालिद भी